हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ये द हिंदू में ओपिनियन नाम का जो पेज है, इसमें ए मॉडल लैब फॉर सेकुलर गवर्नेंस इस टॉपिक पे लिखा हुआ है। और इसके जो लेखक हैं उसको अगर नीचे देखें तो वो हैं शेख मुजीबुर रहमान, और ये जामिया मिलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो देखिए इन्होंने कर्नाटक के बारे में क्या लिखा है। वहाँ पे अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई है। तो उसके बारे में लिखा है कि ए मॉडल लैब फॉर सेकुलर गवर्नेंस while the Hindu right is demoralized in Karnataka, it could bounce back soon. स्टेट ऑफ प्ले, शेख मुजीबुर रहमान ने लिखा है। तो देखते हैं क्या है। द रियल चैलेंज बिफोर द न्यूली फॉर्म्ड सिद्धारमैया गवर्नमेंट इज टू ट्रांसफॉर्म कर्नाटका फ्रॉम द लेबोरेटरी ऑफ हिंदुत्व। देखिए इनकी भाषा। The real challenge before the newly formed Siddharamaiah government is to transform Karnataka from the laboratory of Hindutva under the Bharatiya Janata Party government to a laboratory of secular governance। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का जो एजेंडा था उसको हटा करके कैसे एक सेकुलर गवर्नमेंट वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इसका प्रयास करना है जो नई नई सरकार बनी हुई है कर्नाटका में। This cannot be accomplished by routine governance. On May 24, Chief Minister Siddharamaiah told the top brass of the state police force that क्या कहा? The police must not look at crimes through the prism of this or that religion. This is a good beginning and needs to be pursued in later and spirit। ये तो अच्छी बात है कि किसी भी व्यक्ति का धर्म देख करके कार्यवाही नहीं करना है। अगर कोई विक्टिम है, मुजरिम है, तो आरोपी है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करना है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है। द बीजेपीज इलेक्टोरल defeat in the assembly elections does not imply ideological capitulation of the Hindu right, particularly when the party has retained its vote share. Therefore, the claim that the Hindu right has been wiped out from the south is exaggerated. The Hindu right is demoralized by defeat but could bounce back at the next election, next opportune moment. Patience and an ability to maneuver, कितना कठिन अंग्रेजी लिखते हैं, are some of the virtues of India's Hindu right. In 2022, the government of India banned the Popular Front of India। ये तो अच्छी बात है भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो था वो एक आतंकवादी संगठन था जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाता था और आतंकवादी घटनाएं करवाता था और हिंसा करवाता था, दंगे करवाता था। तो उसका बैन होना तो अच्छी ही बात है। उसका आईएसआई से लिंक था, पाकिस्तान से लिंक था, उसका एक एजेंडा चल रहा था, तो उसको बैन करना तो सही बात था। भारत के इंटीग्रिटी के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए, संप्रभुता की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। The Social Democratic Party of India, founded by the PFI in 2009, had fielded 16 candidates in Karnataka but failed to open its account. This speaks volumes about the voting behavior of Muslims. Most crucially, it sends an unambiguous message that the SDPI's political agenda has no resonance with the Muslim voters. Likewise, the Asaduddin OIC led AIMIM drew a blank with only 0.02% votes। ये तो अच्छी बात है, ये इन सबको ना मिले, AIMIM ना जीते, PFI बैन हो जाए, ये सब तो अच्छी बात है। उसमें रोना किस बात का है, उसको तो मनाएं। 9 Muslim MLAs of the 15
that the Congress fielded won the whereas the JD's JDS, which fielded 23 candidates, drew a blank. This is because Muslim voters consider the Congress and not the JDS a viable alternatives to the BJP. The Karnataka results should further reassure those who expressed concern about the modest success of the AIMIM in the Bihar and the Maharashtra assembly elections. These results confirmed the secular voting behavior of the Muslim voters. अरे भैया PFI को वोट नहीं किया, AIMIM को वोट नहीं किया, तो इसका सेकुलर से क्या मतलब है? ये एक आतंकवादी संगठन है, ये 10-15 नहीं, ये 500 खड़ा कर लें, एक को ना जीते, ये तो होना ही चाहिए। अब PFI का एक को कैंडिडेट नहीं जीता है तो हम सेकुलर हो गए, ये क्या बात हुआ? आतंकवादी का साथ नहीं देना सेकुलर होने की निशानी है? ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। PFI हारी, उसका कैंडिडेट खड़ा हुआ, हारी, होना ही चाहिए था। एक अच्छे समाज में आतंकवादियों को जिताना, उसका पक्ष रखना, ये कहाँ की बात है? तो ऐसी बातें लिखना वो सेकुलर की निशानी बता रहा है। अर्थात अगर वो सेकुलर ना होते तो वो आतंकवादियों को भी पनाह दे देते, लेकिन शुक्र है कि वो सेकुलर थे, इसलिए आतंकवादी को संरक्षण नहीं दिए। तो सेकुलर की परिभाषा क्या ये होगा कि आतंकवादियों को सपोर्ट ना करना इज द निशानी ऑफ सेकुलर। अनदर इंटरेस्टिंग रिजल्ट इज द डिफीट ऑफ प्रमोद मुथालिक, chief of the Sri Ram Sen, which led the attack on women in Bengaluru bars in 2009 from the Karnataka constituency. These results need to be seen as a vote against not just हिंदुत्व और करप्ट गवर्नेंस। अब देखिए, हिंदुत्व को और लिख के कह दिया करप्ट गवर्नेंस, बट आल्सो अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। इनके कहने का मतलब है कि हिंदुत्व इज द सिंबल ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, उसके खिलाफ वोट हुआ है। यानी हिंदुत्व के खिलाफ अगर आप वोट करते हैं तो आप क्या हैं? सेकुलर हैं। आप आतंकवादियों, टेररिस्ट को अगर आप नहीं जिताते हैं तो आप सेकुलर हैं। इनके अनुसार परिभाषा सेकुलरिज्म की क्या है कि हिंदुत्व को हरा देना सेकुलर है और टेररिज्म को हरा देना सेकुलर है, मीन्स हिंदुत्व बराबर टेररिज्म। During its campaign, the Congress was bold enough to announce in its manifesto that it would ban the बजरंग दल। तो बजरंग दल को बैन कर दिया। PFI को बैन कर दिया क्योंकि आतंकवादी संगठन था, बजरंग दल को बैन कर देंगे क्योंकि आतंकवादी संगठन ये भी है, क्योंकि वो हिंदुत्व को प्रमोट करती है और हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करता है, और PFI भी एक्सट्रीमिस्ट एक था, इसलिए बजरंग दल भी एक्सट्रीमिस्ट होने के नाते एक आतंकवादी जैसा कृत्य करता है, इसलिए उसको बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इज अ सिंबल ऑफ सेकुलर अकॉर्डिंग टू दिस लेखक। बट द बजरंग दल इज ए स्मॉल प्लेयर इन द लार्जेस्ट आइडियोलॉजी। वाह वाह, देखिए इनको। बट द बजरंग दल इज द स्मॉल प्लेयर इन द लार्जर आइडियोलॉजिकल कैंपेन ऑफ हिंदू राइट और Organizations that have shaken the foundation of India's secular polity. The Hindu Right Organization that has given India two prime ministers, Atal Bihari Vajpayee and Narendra Modi, is the Rashtriya Swayamsevak Sangh and not the Bajrang Dal. At this juncture, it is worth recalling a speech delivered at Lucknow by Sardar Patel on January 6, 1948. He warned his peers in the Congress that their power
and authority will not be able to crush the RSS. The present day RSS is far more organized, larger in size, and more resourceful. Most importantly, it is a global organization compared to what it was in 1948. दिस इज़ द रियल चैलेंज। देखिए इनके अकॉर्डिंग जो आरएसएस है, जो कि 1948 में जैसा भी था, इस समय बहुत बड़ी संगठन हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी संगठन हो गई है, इसके पास खूब रिसोर्स है, खूब ह्यूमन रिसोर्स है। वो दिस इज़ अ रियल चैलेंज एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक डीपली अबाउट दिस। यानी गवर्नमेंट शुड थिंक डीपली अबाउट द आरएसएस, गवर्नमेंट शुड थिंक डीपली अबाउट द बजरंग दल। तो इन सब पे बैन लगाओ तो कांग्रेस इज सेकुलर। पीएफआई पर हम वोटिंग नहीं करेंगे तो वी आर सेकुलर बिकॉज वी आर नॉट सपोर्टिंग ए एक्सट्रीमिस्ट और ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इनके कहने का मतलब है कि पीएफआई इज इक्वल टू आरएसएस और बजरंग दल and it should be banned. Another fact is that the RSS does not have any magical powers to help the BJP win in every election. As an electoral force, it has limitations. Karnataka has also seen violent killings of cadres of the Hindu right and secular parties in recent years. अभी कर्नाटका में जीतने के बाद ही तुरंत अगले दिन एक हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया था। कर्नाटका में जीतते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये सारे भी सेकुलरिज्म की निशानी है इनके अकॉर्डिंग। मतलब लिखेंगे नहीं ये सारी बातें, लेकिन इसका जिक्र ना करना भी सेकुलर की निशानी है, क्योंकि हम ऐसी बातों को जिक्र नहीं करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस, आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर Basuraj Bommai had threatened to introduce the Yogi model in Karnataka. One of his ministers even said that the state would go 5 steps beyond Uttar Pradesh. These are the signs of violent side of an ideological powers struggle among secular and Hindutva organizations. अब देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज़ कर दिया, These are the signs of the violent side. देखिए violent side. Priyanka Khadge, a minister in the Siddaramaiah government, suggested withdrawal of the Bommai government's regressive policies. This is encouraging, but while rolling back policies may bring short-term relief, it will not foreclose the possibility of the return of such policies under the future BJP governments. The dynamics of an ideological power struggle in an electoral democracy is such that what is rolled back today can be brought back tomorrow. But the 2023 results present some opening for the secular forces to plan for the revival of India's secular polity. सेकुलर पॉलिटी क्या है भैया? हिंदू को मारो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, आरएसएस को बैन करो, बजरंग दल को बैन करो। ये सब एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां हैं, ये सब हिंदुत्व को प्रमोट करती हैं, इसलिए इसको मिटा दो, तब आप कहलाओगे सेकुलर अकॉर्डिंग टू दिस शेख मुजीबुर रहमान। ये पढ़ाते हैं। कर्नाटका सोसाइटी नीड्स, देखिए कर्नाटका सोसाइटी मीन्स मुस्लिम्स, नीड्स हीलिंग। इट कैन नॉट बी accomplished बाय रूटीन गवर्नेंस और ट्विटर एक्टिविज्म। तो यह है लेख। इस लेख से बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ। ओपिनियन ये इनका था। ये यहाँ पे देखिए ओपिनियन वाले पेज में इन्होंने ओपिनियन दिया है अपना। तो इस ओपिनियन पे अगर मेरी ओपिनियन देखें तो वो ये है कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों को एक नज़रिए से देखना। हिंदू को मारना सेकुलरिज्म नहीं है, आरएसएस को या बजरंग दल को बैन करना सेकुलरिज्म नहीं है, पीएफआई को वोट ना देना और इस चीज़ का
फाड़ फाड़ के कहना हमने इसको वोट नहीं दिए इसलिए मुझको सेकुलर कहो, तो इस सेकुलरिज्म नहीं है। AIMIM 0.2% वोट से भी कम वोट पाई, तो मुस्लिम का वोटिंग बिहेवियर बदल गया है, वो सेकुलर हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, ऐसा नहीं है। खाली एक एजेंडा है, एक प्रोपेगेंडा है और साथ में ही एक तुष्टीकरण की राजनीति है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। नमस्कार, जय हिंद।